আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। পোনপ্ৰথমতে মই আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা বিশেষ অতিথি আৰু ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন ডক্টৰ শ্ৰীমন্ত কলিতা ছাৰক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমাৰ STI Hub টিমৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ নমস্কাৰ। ডক্টৰ শ্ৰীমন্ত কলিতা ছাৰ এজন মেনেজমেণ্ট এক্সপাৰ্ট। তেখেতে গুৱাহাটীৰ পৰা আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতে নিজৰ কৰ্মজোৰে অনেক সংস্থান আৰু উদ্যোগ ইণ্ডিয়াত সহযোগ দি আহিছে। তেখেতৰ বিশেষ বিভাগবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন মেনেজমেণ্ট, ক্লাইমেট স্মাৰ্ট লাইভলিহুডছ, এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ, ইনকিউবেশ্যন, বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড মনিটৰিং এণ্ড ইভালুৱেশ্যন। মিড ডে মিল স্কিমৰ লৈও ছাৰৰ অনেকখিনি সহযোগ আছে থ্ৰু হেণ্ড ৱাশ্বিং ষ্টেচন ডিজাইন এণ্ড ইন'ভেশ্যন। এনেধৰণৰ বিশেষ সমাজ কল্যাণৰ সৈতে তেখেতৰ কৰ্ম ৰিকগনিশ্যন আৰু এপ্ৰিচিয়েশ্যন দিয়াৰ খোজেৰে তেখেতক নেশ্যনেল ছ'চিয়েল ইন'ভেশ্যন এৱাৰ্ড, নীতি আয়োগ আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ তৰফৰ পৰা এটি সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত ছাৰে এজন গেষ্ট লেকচাৰাৰ আৰু ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন যেন IIT গুৱাহাটী, IIM শ্বিলং, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ, আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ আৰু বিশেষখিনি ইউনিভাৰ্চিটিত কৰ্মৰত। ইতিমধ্যে মই এতিয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ইনভেষ্টিগেটৰ ছাৰ ডক্টৰ প্ৰণৱ কুমাৰ সিং ছাৰক অনুৰোধ জনাম যে তেখেতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা ডক্টৰ শ্ৰীমন্ত কলিতা ছাৰক এখনি আৰণাই আৰু টোকেন অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ ছাৰক ষ্টেজলৈ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। আমাৰ STI Hub টিমৰ ফালৰ পৰা when we wrote this, submitted this proposal, तो इसके चार पांच मुख्य पहलू हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। बेसिकली एम्पावर करने के लिए हमारी BTR की ST कम्युनिटी को, उसमें से है एग्री वैल्यू चेन, एग्री सेक्टर में फूड वैल्यू चेन, सिल्क वैल्यू चेन, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, बोडो नॉलेज रिपोजिटरी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर STI Hub। वी स्टार्टेड विद फेज 1। अभी हम लोग हमने इंक्यूबेशन सेंटर भी डेवलप कर लिया है लास्ट 3-4 मंथ्स में। तो पहले हमारे पास सेंटर नहीं था जहाँ पे हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को इंक्यूबेट कर सकें। तो वी स्टार्टेड विद ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी ऐसा है कि हमारे पास जगह भी है जहाँ पे अगर आप आएंगे, रजिस्टर करेंगे, और दैट टू वी आर ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। एज ऑफ नाउ हमारे पास 10 एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए स्पेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, AC है, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, हमारे मेंटर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो मेंटरशिप है, हमारी एक टीम है जो आपको टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है। तो अभी हम आपको 1-to-1 ব্যৱসায় কৰি খাবৰ উপায়টো যিসকল মানুহে কৰোঁ আৰু লগতে বেলেগকো চাকৰি দিব পাৰোঁ, আমি সেইটো জাতৰ মানুহ মানে বেলেগৰ ওচৰত চাকৰি খুজিব যোৱা নাই। নিজে কিবা এটা কৰিছোঁ, নিজৰ এখন দোকান হ'লেও আছে, নিজৰ এটা সৰু ব্যৱসায় হ'লেও আছে, আৰু তাতে লগতে ল'ৰা এটাক, ছোৱালী এজনীক বা কাৰোবাক আমি চাকৰিও দিব পাৰিছোঁ, হয়নে নাই? তো সেইটো এটা বিৰাট ভাল কাম আৰু খুব মানে সেই কামটোক বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীত সকলোৱে উৎসাহ দিছে। ভাৰত চৰকাৰেও দিছে, অসম চৰকাৰেও দিছে, BTC গভৰ্ণমেণ্টেও দিছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেংক বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠান আছে যিসকলে আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে। মই ক'ৰবাত চাকৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰো ব্যৱসায় আছে। কাৰণ মই জানো চাকৰিটোত মই দৰমহা ল'মহে, কিন্তু মই যদি ব্যৱসায় এটা লগত কৰি ল'ব পাৰোঁ, মই দৰমহা দিবও পাৰিম আৰু দুটা পৰিয়ালক মই সমৰ্থন দিব পাৰিম, হয়নে? সেইটো ভাল কথা, হয়নে নাই? তো সেইকাৰণে আমি কিবা নহয় কিবা উপায়েৰে ব্যৱসায়ৰ যিটো এটা পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আছে সেইটোক আমি আগবঢ়াই নিব লাগে। ইক'চিষ্টেম বুলি কয় ইংৰাজীত, আমি এইটো আগবঢ়াই নিব লাগে। মোৰ এটা দীঘলীয়া ছেশ্যন আছে, মই কথা গৈ ভাগৰ লাগি যাব, আপোনালোকক শুনি বৰ লাগি যাব, গতিকে এতিয়া আৰু বেছি নকওঁ, এইখিনি ক'লো আপোনালোকৰ পৰা শুনিম। এইমাত্ৰ মই আপোনালোকৰ পৰিচয়বিলাক চবৰে সময় ল'ব খোজা নাই, কিন্তু নেক্সট যেতিয়া মই কম, মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ চবৰে পৰিচয়বিলাক ল'ম, কাৰণ আপোনালোকে কি কি কৰি আছে সেইখিনি জানিলে মোৰ কথাখিনি ক'বলৈ সুবিধা হ'ব। মই তেতিয়া আপোনাৰ কামত লগাকে কথাখিনি ক'ব পাৰিম, নহ'লে মই মোৰ ভাগে কৈ যাম, আপোনালোকে হয়তো বেলেগ কিবা কৰি আছে। হয় না? মোৰ নাম হ'ল কৃষ্ণনন্দ বসুমতাৰী। মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা
বেছি দূৰ নহয় এৰাউণ্ড 5 কিলোমিটাৰ মান হ'ব শিৱসাগৰ ৱাটাবাৰী বুলি আপোনালোকে শুনিছে চাগে একচুৱেলি ইয়াতে অহা কাৰণটো হ'ল আপোনালোকে অলৰেডি জানে যে ইয়াতে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে বুলি তো ময়ো নিজকে এটা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ এম্পায়াৰিং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ বুলি এটা ভাবোঁ মানে সেইটো বিষয়ত মই নিজকে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে বহুত কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ কষ্ট কৰি আছে ময়ো কৰি আছোঁ চ' একচুৱেলি হি ইজ মাই পাৰ্টনাৰ মিষ্টাৰ ইলখাম ব্ৰহ্ম I request him to come forward. So, আমার আৰু এজন পার্টনার আছে আমি তিনিজন মিলি হেল্থ টেক এটা স্টার্টআপ বনাম বুলি ট্রাই কৰি আছো সো সেইটো কাৰণে ইয়াতে যিমানখিনি অপৰচুনিটি আমি গ্ৰেব কৰিব পাৰো সেইটো বিষয়ত জানিব আহিছো আৰু এই 5 দিনত গম পাম মানে আমিও মানে কিমান কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰো আৰু প্লাস ইয়াৰ পৰা কিমান লাভ উঠাব পাৰো সেইটো ট্রাই কৰিম আৰু সো অকমান আমাৰ বিজনেছৰ বিষয়ত মই কব ভাবো যে আমি কি বুলি কয় ইণ্ডিয়াত যেনেকুৱা ডিজিটেলাইজেশ্যন এতিয়া বহুত আগবাঢ়ি আছে তো সেইটো ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ আমি কিমান এই হেল্থৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত মানে মানে अभी तो এটা बाकी सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गया काफी सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे भी है तो वहाँ पे जैसे बैंकिंग सिस्टम उसमें भी यूपीआई सिस्टम्स वगैरह आ गया है तो हेल्थ सेक्टर में ऐसा कुछ अभी कुछ खास अभी हुआ नहीं है तो हम लोग उसी के ऊपर काम कर रहे हैं बेसिकली जो स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज वगैरह है वहां पे काफी लेकिंग चल रहा है और डिजिटलाइजेशन इंडिया में एक्चुअली काफी आगे बढ़ गया है अदर सेक्टर्स में जैसे हम लोग के हाथ में अभी व्हाट्सएप वगैरह आ गया है कभी पहले सोचा नहीं था कि यहाँ पे दुकान में किराने वाले लोग सब्जी मंडी में आप अगर जाएंगे वहां पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे बोल के कभी किसी ने सोचा नहीं था ये 5 साल पहले ऐसा होगा बोल के है ना तो ये हेल्थ इंडस्ट्री में भी अभी बहुत लोगों ने ऐसा सोचा नहीं है कि कुछ ऐसा आने वाला है बोल के हमारा एक विजन है कि हेल्थ इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ आए तो उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं तो जैसे कि मैडम जी ने कहा है कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमें पिचिंग करने का मौका मिलेगा तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट तो उसी के बारे में थोड़ा कुछ मैं वही जो कहने जा रहा था मिस्टर इलखाम ब्रह्म जी जो मेरा पार्टनर है वो बाकी सारी चीज आपको अभी बताने जा रहे हैं बेसिकली क्या है कि हम हेल्थ टेक स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें अभी जैसे कि एआई का माहौल चल रहा है तो वो थोड़ा सा एजेंटिक है एआई पे बेस्ड है वो हेल्थ टेक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है क्योंकि डिस्कवरी ही सबसे फंडामेंटल जो इश्यू है हेल्थ केयर में डिस्कवरेबिलिटी से ही शुरू होता है तो डिस्कवरेबिलिटी को हम जैसे किस तरह से उसको हम सोल्व कर पाएंगे उस पर हम थोड़ा सा काम करें तो उसके लिए जितना सीख पाते हैं हम ये ज्वाइन किया है प्रोग्राम तो सीख लेते हैं थैंक यू हेल्थ सेक्टर में एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम डिजीज को डायग्नोज कैसे करेंगे एक तो है कि आप चले जाएंगे आप हॉस्पिटल में अपना ब्लड सैंपल यूरिन सैंपल एक्सरे ये सब देके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको ये बीमारी हो सकती है इन लोगों ने सोचा है कि इनके जो मेरे डिस्कशन से पता चला कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ सेंसर्स यूज करके कैमरा यूज करके बिना इन्वेजन के बिना मतलब इंजेक्शन इंजेक्ट किए हुए बिना ब्लड सैंपल दिए हुए अगर हम लोगों को डिजीज को डायग्नोज कर सके कि हाँ इनकी आंख देख के पहले की टाइम में क्या होता था किसी को पीलिया है तो नेल्स का कलर आंख का कलर ये सब देख के जॉन्डिस है बोल के लोग बताते थे वैद्य भी ऐसे ही इलाज करते थे तो पहले का जो तरीका था वैद्य का वो था नॉन इन्वेजिव तरीके से लोगों का डिजीज को डिटेक्ट कर लेना अब वैद्य जो है वो एआई होने वाला है इनके हिसाब से वो आपको देखेगा आपके सिम्टम्स को आपके फेस को आपके आईज को स्कैन करेगा आपके पल्स को सेंस करेगा
और बताएगा कि आपको क्या डिजीज हो सकता है। तो ऐसा एक बूथ ये लोग तैयार करने की सोच रहे हैं और एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है और इस डायरेक्शन में पूरे भारत में कई जगह काफी काम भी हो रहे हैं। बीटीसी गवर्नमेंट ने भी शायद कुछ दिनों पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया है जहाँ पे वो इस तरह का बूथ डेवलप करने वाले हैं। और अगर अपने लोकल यूथ भी इस फील्ड में आएंगे और कुछ डेवलप करेंगे, क्योंकि हमें सबको पता है कि हेल्थ सेंटर्स काम नहीं करते हैं ठीक से। तो अगर हम इस तरीके से लोगों को एम्पावर कर सके और अर्ली डिजीज को डिटेक्ट कर सके, उनको हम आयुष्मान भारत से सेवा से जोड़ सके, आभा से जोड़ सके और गवर्नमेंट के बेनिफिट दिला सके, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन अगर हम बना पाएंगे, उसी डायरेक्शन में इनका काम है। तो मुझे उम्मीद है हमारी जो टीम है एक्सपर्ट्स की, हमारे यूथ को पूरे थ्रू आउट इस सेशन में गाइड करेगी कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए सपोर्ट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे, उसको डिप्लॉयमेंट में सपोर्ट करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट में किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड हम कैसे सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये प्रोग्राम शायद आपको हेल्प कर पाएगा। और दूसरा, मैं सभी इंटरप्रेनर्स को बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में हम अपने यहाँ तो रजिस्टर कराएंगे ही कराएंगे, प्लस बीटीसी गवर्नमेंट भी एक इनिशिएटिव लेके आई है। आप सभी को पता है कि नहीं? कितने लोगों को पता है बीटीसी का इंटरप्रेन्योरशिप रजिस्ट्रेशन वाला? कितने लोगों ने रजिस्टर किया है उसमें? किसी ने रजिस्टर किया है बीटीसी गवर्नमेंट वाले में? और जो रजिस्टर किया है उन्होंने दूसरे इंटरप्रेन्योर्स को बताया है कि नहीं बताया है? दूसरों को बताऊंगा तो उसको मिल जाएगा, मुझे पैसा मिलेगा कि तो आप सभी को गवर्नमेंट की स्कीम में भी रजिस्टर करना है। आप हमारे यहाँ रजिस्टर करिए, क्योंकि हम तो फाइनेंस आपको नहीं दे पाएंगे। फाइनेंस आपको गवर्नमेंट दे सकती है, बैंक दे सकती है लोन के तहत। तो बीटीसी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें सभी इंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं। वो सभी इंटरप्रेन्योर्स के लिए उन्होंने प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। फार्मर्स एक्सोटिक जो फ्रूट प्लांट्स है उसको ग्रो करने में सबको मदद करना और इसको एक एक्सोटिक फ्रूट हब बनाना। जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड में हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे टूरिस्ट लोग इतने आते हैं, उनको इतने तरह के फ्रूट्स खाने के लिए मिलते हैं और वो बहुत अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। और जब हम खुद ग्रो करके खुद खाते हैं वो फ्रूट्स, तो हमें दूर से जो ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो सब नहीं होंगी। ट्रांसपोर्ट में जब सब्जियां या फ्रूट्स आते हैं दूर दूर से, तो उनमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स दिया होता है। तो हम लोग फार्मर्स को और जितने भी ट्रेडिशनल फार्मिंग में हैं उन लोगों को भी प्रेरित करना चाहते हैं कि वो एक्सोटिक फ्रूट फार्मिंग की तरफ आए, हॉर्टिकल्चर की तरफ आए और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट प्लांट्स ग्रो करके अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। तो इसीलिए मैंने एक नर्सरी सेटअप किया है जिसका नाम है असम फूड फॉरेस्ट नर्सरी। ये कारीगांव में है और मैं उसको अकेले चला रही हूँ और मेरे अंडर में 5 जो है एम्प्लॉइज हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं और उनकी रोजी रोटी अभी चला पा रही है। और इसी तरह से मेरा सपना है कि इसे एक इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सके, एक हाईटेक नर्सरी यहाँ पे स्थापित कर सके असम में, क्योंकि ये कॉरिडोर है असम में, कोकराझार से ही सारी चीजें जाती हैं। तो असम और नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से हम लोग एक बड़ी नर्सरी स्थापित करके प्लांट सप्लाई कर सकते हैं और असम को भी इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।